وہی جو سٹی ہے جو اقبال کو پسند ہے، ایک پاکستان سے مائگریٹ ہو کے ایک شخص آتا ہے اور جرمنی میں پہلا الیکشن وہ جیتتا ہے، اور میں بھی اتفاق سے سیالکوٹ سے ہوں، اقبال بھی سیالکوٹ سے، اور وہ بھی بٹ اور کشمیری فیملی سے، تو میں بھی بٹ اور کشمیری فیملی سے۔ ہائیڈلبرگ بہت ہی خوبصورت سٹی ہے جرمنی کا، اور وہاں پہ ہر سال 13.5 ملین گیسٹ آتے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے اس لحاظ سے بھی کافی انٹرسٹڈ ہے، اور کافی لوگ پاکستان سے بھی آتے ہیں، تو وہ خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور بس وہ لوگ ساتھ مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں، ایسا ایزی نہیں ہوتا ہے، ایسے پولیٹیکل پارٹائی جیسے ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی آزاد ہے، جیسے ہمارے پاس خود بجٹ ہے، ہم خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ہر چیز کا خود ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، کوئی کسی لحاظ سے کسی کا کوئی پرمٹ نہیں چاہیے، تو اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ نظام ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں اپنے سٹی کے بارے میں، اپنی لوکل جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس بارے میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی۔ میں ہوں آپ کی میزبان رامین محمود۔ ناظرین، آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے نہ صرف پاکستانی بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ وسیم بٹ صاحب، اگر میں ان کی بات کروں تو وہ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں سٹی پارلیمنٹ ممبر ہیں، جو کہ فرسٹ مسلمان ہیں جو کہ الیکٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ دیگر امور میں بھی اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بطور پاکستانی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے، بھی ریسنٹ ان کے بہت سارے امیزنگ اور انٹرسٹنگ انیشیٹوز ہیں پاکستان کو لے کے، کیا کس طرح دیکھتے ہیں وہ یہاں کی سیاست کو، وہاں کی سیاست کو، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈسکور پاکستان ٹی وی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، الحمدللہ۔ مجھے بتائے گا ابھی ہم آپ کے سیاسی کریئر پہ اور باقی چیزوں پر تو آئیں گے، لیکن سب سے پہلا سوال، جب آپ جرمنی گئے، کیونکہ ایف ایس سی کے بعد یو موو ٹو جرمنی، پہلی نوکری کیا کی؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ جیسے جرمنی موو کیا تو میں نے کوئی بھی نوکری نہیں ایسی کی، کیونکہ میرے ایسے پہلے سے من میں تھا کہ ہمیں کوئی یہاں بہت ایزی کلیئر تھا کہ دنیا میں دو ہی راستے ہیں، یا آپ کو نوکری کرنی ہے کسی کے لیے، یا آپ کو نوکری دینی ہے، تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو میرا یہ بڑا کلیئر ڈیسائیڈ تھا کہ مجھے نوکری لینی نہیں ہے، نوکری دینی ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کا جو سیاسی کریئر ہے بڑا ٹف ہے، کہ جانا جرمنی میں جا کے اپنی ویلیو بنانا، سیاسی کریئر بنانا، اور پھر پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو جانا، یہ کیا سفر تھا، کتنا ڈیفیکلٹ تھا؟ میرا خیال تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیفیکلٹ ہے، بلکہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ کلیئر ہو کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چیز ایسی ناممکن نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی، اور اگر آدمی محنت کرتا ہے اور پراپر طریقے سے اس لائن میں کام کرتا ہے تو چانس ملتا ہے۔ اور جرمنی تو بہت ہی پیارے اور خوبصورت لوگ ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسے جیسے ہم جیسے لوگ جو وہاں سے اوریجنل شاید نہیں ہیں، لیکن ہمیں ایسے سیم ہی رائٹس ہیں، حق ہیں کہ ہم الیکشن میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور جو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا یہ کلیئر تھا کہ مجھے عام سب جیسے نہیں کرنا جو سب پاکستانی کرتے ہیں، کہ مجھے نہ تو پزا ڈرائیو کرنا ہے، نہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنا ہے، نہ کہیں جاب ڈھونڈنی ہے۔ تو ہم بس اسی کو فالو کیا جو اپنے ایشوز تھے، جو اپنے پیشن ہے، جو اپنے من میں تھا۔ پاکستانی جو ہے وہ بے شمار ایسے ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی جس ملک کا نام ہے وہ روشن کر رہے ہیں، اور آپ یو آر ون آف دیم۔ مجھے یہ بتائے گا چیلنجز کی جب ہم بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ دیٹ پیپل سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ کی ہر جرنی کا پارٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے سیاسی کریئر کا جو چیلنج ہے سب سے بڑا، وہ کیا تھا وہاں پہ؟ دیکھیے، وہ یہاں پہ یا وہاں پہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو وہاں بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کنٹرول ہے، تو وہاں پہ ظاہر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر وہاں پہ بھی ایسا ہے کہ آپ کو بہت کم چانس ملتا ہے، تو اس لیے میں نے آزاد الیکشن میں حصہ لیا۔
उससे ज़ाहिर है टफ होता है फिर, क्योंकि आपको सब कुछ ही एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह करना पड़ता है, आपको खुद कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, आपको खुद लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको एक प्रोजेक्ट पेश करना पड़ता है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है इस लिहाज से, अगर कंपेयर टू जो लोग किसी पार्टी के मेंबर हो जाते हैं तो वो पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, पार्टी का सारा स्टाफ यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं था, तो वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और बस वो लोग साथ मिल रहे हैं। तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, ऐसा ईजी नहीं होता, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही काम करना पड़ता है, तो जो टफ भी होता है और फिर मालूम नहीं होता कि भाई अगेंस्ट स्लोगन्स भी होते हैं, अगेंस्ट ऐसा भी है कि प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी। अक्सर लोग जो है वो जो आज़ाद इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो जीतते नहीं हैं, क्योंकि इतना बहुत मुश्किल होता है सब पार्टियों के साथ कंपटीशन करना और वोट लेना, और फिर पाकिस्तान में रहते हुए अपनी एक पहचान बनाना, और फिर एक बिल्कुल नए कंट्री में जाके वहाँ के लोगों के साथ और उनके लिए, उनके अंदर जो है वो अपने लिए वो एक जो है वो फेवरेटिज्म का पार्ट या वोट के लिए किसी को इन्फ्लुएंस करना, इट्स वेरी टफ आई गेस। मुझे ये बताएगा, हम जब निज़ाम की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान में थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पे शख्सियत जो है उसको ज़्यादा वैल्यू, वहाँ पे निज़ाम को ज़्यादा वैल्यू है। सियासी निज़ाम की जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कनेक्टिविटी हो सकती है, और किस तरह जो है वहाँ के क्या पॉजिटिव्स हैं, यहाँ के क्या पॉजिटिव्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, कोई ऐसा सजेशन? असल देखिए, दोनों तरफ जो है मेन मकसद तो एक है कि लोगों के लिए कैसे आसानियाँ पैदा की जाए, यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, मेन तो यही है, फोकस दोनों का एक ही तरफ होता है। अब मुख्तलिफ रास्ते ढूंढे हुए हैं, यहाँ पे ज़रा और एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे उसका सेटअप है, मुझे रियली खुद भी ऐसा मालूम नहीं है कि क्यों यहाँ पे ऐसा है और क्यों इसको बेहतर नहीं बना सकते वहाँ पे, क्योंकि इस लिहाज से ख्याल में बेहतर बनाया जा सकता है, कोई इतनी बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए वहाँ पे सारी दुनिया रहती है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो टोटली आज़ाद है, जैसे हमारे पास खुद बजट है, हम खुद ही डिसाइड करते हैं, हर चीज़ का खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई किसी लिहाज से किसी का कोई परमिट नहीं चाहिए। तो अगर वहाँ पे हो सकता है तो यहाँ पे भी ये निज़ाम हो सकता है कि लोग जो है वो खुद डिसाइड करें अपने सिटी के बारे में, अपनी लोकल जो टाउन कमेटी है उस बारे में कि भाई कैसे उनको बनाना है, कैसे कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे उनको लिए स्कूल के क्या इशू हैं, सड़क के क्या इशू हैं, तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं जो लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे तो ये बिल्कुल आम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सब हम यूज़ थे। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो वो जो मुआशरे हैं वहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस हमें नज़र आती है, बड़ा जो है वो उसको फॉलो करते हुए लोग नज़र आते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें उस तरह से वो नज़र नहीं, उसकी क्या वजह लगती है आपको, व्हाई इज इट सो? असल देखिए वही ट्रेनिंग है। अब लॉ और ऑर्डर का मेन तो ये है कि जो आवाम है उसको एक्सेप्ट करे, तो लोगों को जो है ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो खुद ये डिसाइड करें कि हमें अपनी सड़क को साफ रखना है और हम सबके खुद रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ पे ये है कि हर शख्स अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता है कि उसका घर के आगे पीछे क्या है, कोई क्या हो रहा है, ट्रैफिक कैसे है, टिकट कैसे लेनी है, लाइन में कैसे खड़ा होना है। तो वहाँ क्योंकि सब लोग खुद ऐसे इन्वॉल्व हैं तो वो बड़ा इजी है। एग्जैक्टली, और लोग ही कम्युनिटी बनाते हैं, लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं, और सिविलाइजेशन जो है वो लोगों की बदौलत ही आगे बढ़ती है। मुझे ये बताएगा, अच्छा मैं अगर बात करूँ वसीम साहब की, तो इन्होंने पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ऐसी इनके इक़दाम हैं जो ये साथ साथ लेके चल रहे हैं। स्पेसिफिकली बात करें लिटरेचर के हवाले से, फिर अभी जो रिसेंट इनका एक कैंसर को लेके एक इनिशिएटिव है उस पर भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आऊँगी लाहौर के लिटरेचर को, और हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती रहूँ कि जब हम बात करते हैं सिटी की, जर्मनी की, तो वहाँ पे इकबाल की एक पोइम, और इकबाल स्ट्रीट भी वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने एक पोइम भी लिखी एक शाम के नाम से उनकी याद में, और वहाँ पर उन्होंने बड़ा वक्त भी गुजारा अपनी स्टडी के लिए जब वो PhD के लिए वहाँ पर गए। तो ये कितना नॉस्टैल्जिक होता है एक आपके लिए स्पेसिफिकली वहाँ पे, एक तो इकबाल स्ट्रीट में जब आप जाते हैं वो, और फिर आपने जो इनिशिएटिव लिया कनेक्ट करने का लिटरेचर को, यहाँ के लोगों
को वहाँ पे जो है वो माइग्रेट करवाना एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू, वो क्या है वो हमें बताइए। जी हाँ, पहले तो हाइडेलबर्ग बहुत ही खूबसूरत सिटी है जर्मनी का, और वहाँ पे हर साल 13.5 मिलियन गेस्ट आते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इस लिहाज से भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, और काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी आते हैं क्योंकि इकबाल का वो फेवरेट सिटी है। इकबाल स्ट्रीट है, इकबाल की एक नज़म लिखी हुई है वहाँ पे, और इकबाल जिस घर में रहते थे वहाँ पे कतपा लगा हुआ उनके नाम का। और इत्फाक से कह लीजिए जब मैं इलेक्शन पहली दफ़ा ऐसे जीता तो ये था कि अच्छा, यानी ऐसा हो गया कि वही जो सिटी है जो इकबाल को पसंद है, एक पाकिस्तान से माइग्रेट हो के एक शख्स आता है और जर्मनी में पहला इलेक्शन वो जीतता है। और मैं भी इत्फाक से सियालकोट से हूँ, इकबाल भी सियालकोट से, और वो भी बट और कश्मीरी फैमिली से, तो मैं भी बट और कश्मीरी फैमिली से। अच्छा, वो ऐसी चीज़ें जो मिलती गई तो मुझे ज़ाहिर है इस पे फ़ख्र है कि ऐसे बड़ा एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है आपका। आप हाँ, तो उस वजह से फिर मेरे ज़हन में आया कि जो है हम पाकिस्तान के साथ या लाहौर के साथ कम से कम आर्ट, कल्चर और लिटरेचर में काम कर सकते हैं, क्योंकि इकबाल से भी मुंसलिक हैं, और फिर दोनों मुल्कों में इससे राब्ता भी हो सकता है, लोग भी आ जा सकते हैं, लिटरेचर वाले, आर्ट वाले, म्यूज़िक वाले। और हर साल जब से 2019 से लाहौर यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के नेटवर्क का मेंबर है, तो हर साल जो यहाँ से हम हाइडेलबर्ग इनवाइट करते हैं, वो राइटर भी होते हैं, म्यूजिकर भी हैं, उसमें डांसर भी हैं। ये जो कैंसर के लिए भी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, और वो तो ये इनिशिएटिव कैसे जहन में आया कि इसकी भी ज़रूरत है, और ये इतने वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर कैसे काम कर रहे हैं? लाइक हमारे दिल में ऐसा है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अभी जो दुनिया के एक स्टार हैं प्रोफेसर डॉक्टर फिस्टा, जो चिल्ड्रन ऑन्कोलॉजी में बहुत ही पॉपुलर स्टार है और वहाँ के चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, तो उनसे मुलाकात थी और हमने फिर ऐसा उनको प्रपोज़ल पेश किया कि आप पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है इसकी, जो प्रॉपर मॉडर्न डियग्नोस्टिक है कि बच्चों की कैसे पहले डियग्नोस्टिक हो सकती है कि उसको कौन सा ट्यूमर है, कैसा ट्यूमर है, कैसा उसका इलाज हो सकता है। तो वो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साहब का भी कि वो अपनी पूरी सारी टीम लेके यहाँ पे आए, और फिर यहाँ पे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, कैंसर केयर हॉस्पिटल और यहाँ की मुख्तलिफ कैंसर हॉस्पिटल, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने, हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान ने रिसेप्शन दी, और मुझे उम्मीद है इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी बच्चों को इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अभी आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात की, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, मैं आपका देख रही थी वो सारा टूर, तो कैसी थी मुलाकात आपकी? बहुत अच्छी, रियली जो हमें बहुत अच्छा लगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो पूरी प्रॉपर, यानी ऐसे महसूस हो रहा था कि वो पूरा उन्होंने पहले से रिसर्च की हुई है, पूरे डॉक्यूमेंट सामने रखे हुए हैं, और बहुत ही क्लियर इसमें उनका ऐसे माइंड था कि वो बहुत खुश भी हैं कि हम ये डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए हैं और हम नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट होगी हमें, उनका ऐसा ही हमें रियली फीडबैक है, और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमें हैंडल किया, बहुत ही अच्छा रियली ऐसे मुलाकात उनसे हुई। और वो क्योंकि हाइडेलबर्ग को जानते हैं, हाइडेलबर्ग में पहले भी रहे हुए हैं, बल्कि उन्होंने स्टे किया हुआ है, और इस लिहाज से ये भी ऐसे कहा कि मैं हाइडेलबर्ग फिर एक कनेक्टिविटी भी हो गई, फिर मैं आऊँगी और वहाँ पे मुलाकात होगी, और इस सेक्टर में जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करेगी।
अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिए और फिर जर्मनी में स्पेसिफिकली पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से जिनका ताल्लुक है, वहाँ पे इन्होंने उनको प्रमोट किया, किस तरह से जो है वो मौके फराहम किए। मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करती चलूँ कि इन्होंने जो कल्चर एक एक्सचेंज होता है ना, लैंग्वेज के थ्रू, कल्चर के थ्रू, डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, वो इन्होंने जर्मनी की जो जर्मन लैंग्वेज है उनके यहाँ पे स्कूल्स को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे बताएं कि कितना ये इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी कल्चर एक्सचेंज, स्पेसिफिकली लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ की डिफरेंट लैंग्वेज है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स सीखते भी हैं, वहाँ जाते भी हैं, और फिर यंगस्टर्स के लिए अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में वहाँ? देखिए, किसी भी मुल्क का अगर कल्चर या लोगों का माइंड और मन समझना है तो उसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन सही तभी हो सकती है कि अगर उसके लैंग्वेज में वो बात करते हैं। तो ये एक बेस्ट मैं समझता हूँ तरीका है दोनों मुल्कों के लोगों को मिलवाने का, एक दूसरे को समझने का। और हम अभी तक यहाँ से गालिबन 20 बच्चे कोतुम कॉलेज से लेके गए हैं, जो मैं समझता हूँ वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के वहाँ, रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो हाइडेलबर्ग में जो टॉपर है वो एक पाकिस्तानी जो कोतुम कॉलेज से हम लेकेंगे वो बच्चा है, जो मालूम नहीं यहाँ पे उसके पास क्या चांस था, लेकिन वहाँ पे वो 1.5 मिलियन मिनिमम उसकी इनकम है। मोटिवेट कैसे होते हैं, कहाँ से आती है मोटिवेशन आपके लिए कि हर रोज़ एक नया आपने जो है वो अबूर किया है, एक माइलस्टोन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? शायद आपको इन्फॉर्म है कि कोरोना में मैं कोरोना से बहुत मुतासर था। मैं 6 माह कोमा में रहा हूँ और 1 साल इंटेंसिव हॉस्पिटल में, और लेकिन कोई भी ऐसा मोटिवेशन में फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा बड़ा जब कोमा से वापस आए तो पहली क्या थॉट थी? बड़ी हैप्पी थॉट थी। के हवाले से थी या फैमिली को देखना चाहते थे क्या? वो सब कुछ ही वैसे ही था जैसे मैं छोड़ के गया था, उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। हाँ, मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे कोरोना में साथ ही, तो पहला मेरा जो कोमा के बाद सवाल था मेरे बेटे से कि दादा अबू कब तक ज़िंदा रहे, तो इस लिहाज से ज़रा वो थोड़ा ऐसा इशू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेडिकली तौर पर तो मैं हर दफ़ा डेड डिक्लेयर था, कोई चांस था बचने का। हाँ, बल्कि मैंने आपकी किसी बड़े आपके क्लोज फ्रेंड से भी पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि 4 बार डॉक्टर्स ने आपको डेड डिक्लेयर किया, और फिर जब वो मशीन उतारते थे तो उसके बाद वो देखते थे कि नई मूवमेंट हो रही है। ये क्या स्टोरी है? जी, नॉर्मल मेरे जो लंग्स हैं वो 100% डैमेज हो गए थे और मेडिकली तौर पे वो रिकवर नहीं होते, और कोई चांस नहीं ऐसा होता कि कोई भी इंसान जो है वो उसको रिकवर करे और उठ सकता है, और बल्कि उसके लिए या तो ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, वो भी मेरी नहीं ऐसे हो सकती थी, तो कोई चांस नहीं है, आपको बस जाना ही जाना है। हाँ। तो डॉक्टरों ने पहले भी 2-3-4 दफ़ा फैसला किया कि हम सब मशीनें स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन बस कभी फैमिली कोई ना कोई आइडिया दे दे और यस ना करे या बाकी कुछ लोग। तो 6 माह बाद जब हर ट्रीटमेंट देने के बाद ये फ़ैसला कर लिया कि नहीं बच सकते, पहले भी बहुत दफ़ा हमने डिसाइड किया है, तो फिर फैमिली से भी उन्होंने यस ऐसे करा लिया कि ठीक है हम कल सर मशीनें स्विच ऑफ करेंगे। और लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में आए और स्विच ऑफ करने के लिए पूरी जो टीम होती है, तो मालूम नहीं है क्यों है वो जो लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है ज़रा फिर वो खुद ही लंग्स मेरे टोटली सही हो गए हैं, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और अभी आपके सामने बैठा हूँ। तो नॉर्मली मेडिकल के लिहाज से तो मेरा कोई चांस नहीं है, लेकिन इसलिए हम तो हर टाइम मोटिवेट ही रहते हैं, डिमोटिवेट कोई ऐसी चीज़ होती नहीं। नहीं, ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। जहां हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ अचीवमेंट्स के हवाले से, वहीं पर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोज आते हैं हेल्थ के हवाले से स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स का यहाँ तक कह देना कि कल हम मशीन्स उतार के जो है वो कोशिश करेंगे, अगर तो होता है, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस, और फिर उसके बाद इतने मोटिवेट होकर इस तरह के मज़ीद इनिशिएटिव्स करना, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एक यंगस्टर के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के मेरे ख्याल से जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हीं के लिए। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम डिस्कवर एक्सक्लूसिव से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।